Assalamu alaikum, Iman. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam, Umair. How are you doing? I'm good. I'm good. It's a very long waited session, and I'm excited that now we are doing it. Mm. Before we start off, because the main reason of having these sessions is to get knowledge from industry professionals of a specific career path में ताकि हमें पता चले कि यार हर बंदा किस तरीके से grow कर रहा है. So there are multiple things that I want to discuss, and there are a lot of good things and good pointers जहाँ से लोग सीख रहे होंगे. But before we do that, I'll be happy if you can just introduce yourself, क्या चल रहा है life में, how's everything, and then we start the session. Sure, that would be great. Firstly, thank you so much for having me here. Yes, it truly is a very long-awaited session, and finally we're here. I'm really glad. So, firstly, this is Iman. My name is Iman Khandrani, as per my LinkedIn account, and I'm currently working as a human resources business partner and one of the leading IT organizations of Karachi. We are located in Karachi. What is different or what is worth mentioning in my profile or my introduction is that I graduated as a pharmacist back in 2024, and then I later on switched my domains towards human resources management. Although I do have experience of HRM for almost more than 3 years. So yeah, that is something different. Other than that, I have a kid of my own, that is I Mantra. I don't call myself a founder or a CEO. That sort of terminologies. I feel when you make something out for a good cause, it's like your child, and you nourish it like that, and you give what you have taken from the society, you give it back to the society. So I Mantra is for that. So yeah, that's the basic introduction. Perfect. So as you mentioned, you have done your graduation in pharmaceutical, PharmD, to be very specific. तो वहीं से start करते हैं. Um, तो PharmD को देखने के PharmD के जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा होता है या जो लोग होते हैं, PharmD is basically the backup plan of बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है? एंड समव्हाट कहीं न कहीं ये रियलिटी होती है। आई डोंट सी इट कि यार ठीक है, कोई मसला नहीं है। हो सकता है देयर आर पीपल हू वांटेड टू डू फार्मास्यूटिकल बिकॉज़ एवरी फील्ड हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल टू डू। सो व्हेन यू हैव डन योर फार्मास्यूटिकल, ठीक है, व्हाट वाज़ द राइट पाथ? व्हाट वाज़ द थॉट प्रोसेस व्हेन यू वर taking admission? Because to be very honest, what I personally believe, graduation is a very big part of your life. It's not being properly tracked like your school जहाँ पे आपके माँ-बाप को सब पता होता है और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको ये पता होता है कि यार इन 4 साल के बाद आई विल बी गोइंग टू माय प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है? येस, देयर आर पीपल हू वर्किंग फॉर एक्सवाईज़ेड जगह पे काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग होती है। बट व्हाट वाज़ योर थॉट प्रोसेस? व्हाई यू चूज़ फार्मास्यूटिकल? इज़ इट समथिंग कि ठीक है यार मेरे खानदान में और लोग कर रहे थे तो आपने कर ली और यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? बिकॉज़ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, वही चीज़ करते रहो। In your case, you are also you have done your graduation in pharmaceutical, but you are not pursuing it, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आपको चीज़ करनी थी। But what was the thought process, how you picked pharmaceutical? So, I to be very honest, firstly, I didn't pick pharmaceutical. It was more or less like we're three sisters. Like हम तीन बहनें हैं. तो like मेरे अब्बू का हमेशा से यही था, मेरे बाबा का कि like मैं अपनी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाऊंगा. So we no concept of career counseling in Pakistan at all since the beginning of mankind. They were like, nahi pre-medical hai, to I went into pre-medical. Among all three of our sisters, I was the most bright one. So they were like a no-brainer. Hai. So she'll get into like med university. Although I didn't. I was a bit sick during the NTS, and then when I got into the dental. वो मेरा थोड़ा एक था, तो I didn't go for dental. I was थोड़ा मेरा I feel no offense to any dentist out there. I feel like that's a bit gross. So I didn't pick that. I got into Dow for dental. Then third option, exactly 90% students pharma बचता है कि वो suffix prefix लग जाएगा डॉक्टर का, तो like go for it. So like I went for it. Didn't much give it much of a thought. So yeah, graduated as a pharmacist, but yeah, definitely HR was something जो एक personal choice थी, एक risk था, letting go of like पूरी 5 साल की डिग्री को लेट गो करना. Although I am somebody who always like plays safe. Like I always have a plan B. Pharma should have been my plan A, but was my plan B. If like I couldn't have made my career in HR, I would have gone back to my family.
I started working in HR even before my graduation. I was, I think, more or less in sixth semester, third year था हमारा 5 साल का होता है. So I started working on that. I started reading book, did some homework, did some certifications, consultation. कि ठीक है कोई जॉब नहीं दे रहा कोई बात नहीं we will create our job we'll be self employed started giving out consultations to startup पाकिस्तान में और कराची में आईटी फर्म्स का जो रेवोल्यूशन आया है it was since 2010 onwards like हर एरिया में आपको you can find 20-25 startups or IT firms or software houses they need HR but they're not capable of hiring an HR full time so identified a market gap and took a lot of advantage from then gathered a lot of experience worked with more than 15 startups even before my graduation consultations provide the organizational charge policy manuals like they were on my fingertips I still meet people who have worked in HR for almost 10-15 years but they cannot like create a complete policy manual from the scratch on their own I can I have made policy manuals for more than 15 startups so yeah वो मेरी कॉलिंग थी। ये मेरा फेट था, डेस्टिनी थी फार्मा एचआर वाज़ माय कॉलिंग। देन लेवरेज बहुत ज़्यादा कहाँ से मिला यूनिवर्सिटी में आई वाज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ लिटरेचर क्लब, आई वाज़ द लीड फाउंडर ऑफ ड्रामेटिक्स क्लब, आई वाज़ इन स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट कमिटी, secretary, general secretary. So everybody always like saw me not in a lab or in a production or in a pharmaceutical organization. They always saw me working corporates, handling board meetings, board member, committee, team. They always saw me in operations, and I think I just wanted to hear it from somebody else. And when I did, like we had a career counselor, Dr. Najib, and multiple other people in our university, they said, you should go for operations or like corporate. We really see you there. बस वो सुनना था और वो चीज़ रह गई ज़हन में and I just like went for it. Fair enough. So that's So the map. what I see is कि not everyone is that much lucky, ठीक है? Yes, you got a career counselor जिसने आपकी ये बात बोली, but nevertheless आपको अंदर से पता था you wanted to become a public profile कि ठीक है यार मैं ज़रूरी नहीं है I don't see कि हो सकता है कि एचआर ही ना हो बट you want to do something differently than pharmaceutical and I think that works very very good for you but आपने एजुकेशन के साथ-साथ उसको रखा, ठीक है? यू Yeah. डोंट डू इट कि ठीक है मैं फार्मा में आ गई, आई ड्रॉप इट एंड आई विल डू समथिंग। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ बैकअप प्लान एंड आई रियली लाइक इट क्योंकि Absolutely. व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि येस, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस चीज़ में पढ़ा हो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें, बट देयर इज़ नो हार्म क्योंकि राइट नाउ द सिस्टम वर्क्स इन अ वे कि ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग गोज़ इन द राइट वे। सही है, सो यू गॉट अ मेंटर they guide you to become a pharmacist or sorry becoming a HR and Yeah. something ठीक है so you are a, a full Gen Z you born into 2000 ठीक है Yeah. so there is a debate ongoing where people say that Gen Zs are not into that work and that and this do you think it's right do you see that right क्योंकि because you are a front face of a company जहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलता है and you are not hiring on a basis of के ये इस साल में पैदा हुआ है तो मैं इसको हायर करूँगी या मैं इस साल में पैदा हुआ तो मैं हायर नहीं करूँगी, ठीक है? येस एवरीवन हैज़ डिफरेंट माइंडसेट, एवरीवन हैज़ डिफरेंट माउथ टू स्पीक ठीक है, किसी को कोई चीज़ सही लग रही है, किसी को वो चीज़ सही नहीं लग रही, ठीक है? आई सी वेरी फ्यू पीपल हू आर नाउ बीइंग अ जेन ज़ी becoming a head of a department. You are now माशाल्लाह doing good in your life ठीक है? क्योंकि आपने आपने अगर एचआर बनना था तो आपने ये नहीं कहा कि ठीक है आई हैव डन माय ग्रेजुएशन उसके बाद मैं सोचूँगी। आपने आहिस्ता-आहिस्ता उसमें काम करता रहा। ठीक है? So what do you think like what's your thought process being a Gen Z? Is Gen Zs are different? If they are right, wrong? What's your thought process on that? Yes, I undoubtedly and no arguments on this that Gen Zs are different. Gen Zs are the most revolutionized and rebellious generation I've seen in corporate. I still cannot imagine Gen Zs like in suits or board meetings, there is a huge turnover, a 360-degree turnover in the corporate sector when Gen Z steps in. But on the same time, I feel this is the need of the time. The organizations are not running the same way they were running in 90s or 80s. The organizations have changed, and I think the most adaptive generation Gen Zs are that. Like if अगर मैं अपने father की example लेती हूँ, my father worked in the same organization for 25 years. Like my sister
was born and married off while my father was working in the same organization. But at this time, and back then organizations were different. Organizations were really loyal to their employees. They still are. It's a very controversial topic I'm touching over there, but now it's good, it's good to follow the dynamics that are created in this current century. Gen Zs को पता है कहाँ से किस वक्त कब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पिक करके एक सही फैसला ले लेना चाहिए। मिलेनियल्स और मिलेनियल से पीछे वाले बूमर्स जो हम कहते हैं, दे they add a lot of thought and they don't take risks. Gen Zs are not afraid to take risks. Even I took a huge risk. I invested like more than 6 millions on my pharma, and although I graduated on scholarship. Out of 6 out of 10 semesters I got my scholarship, but still it was a huge amount. I studied from Jauddin. It's one of the like most expensive universities for pharma. So but still सब कुछ लेट गो कर देना रिस्क था, बट लेना था तो इसलिए लिया। सो दैट इज वन थिंग अबाउट जेंजीज आई लव, आई रियली एडमायर कि रिस्क लेना है तो ले लेंगे। They won't stop there, and that is what the need of the time is. Like I've seen CEOs of 20 with 23 साल का बच्चा वो CEO है, he's running the organization and it's a good organization. It's making $25,000 a month, which is a good amount. And there are organizations like 30, 35 that they are making more than $90,000 or $100,000 a month. So they have that in them. तभी वो ये कर रहे हैं. So yeah, it's good. It's need of the time. Fair enough. Throughout your overall your career, I see that you have worked for different companies. ठीक है? Now you have this is very uncommon क्योंकि एक तरफ जेनज़ीज़ क्या स्टिक नहीं रहता एक जगह पे, और एक जगह पे मैं जिस जेनज़ी से बात कर रहा हूँ वो एचआर में ही जिनको जो कहते हैं कि भाई एक जगह स्टिक रहो, ठीक है? ग्रोथ पे काम करो, ठीक है? Yes, you were right that the medium changes, the organization changes. Yes, there are people back in millennials या millennials से पहली जनरेशन की बात करूँ जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे, ठीक है? टाइम को अलग तरीके से। But what I personally believe, not वर्टिकल इज़ ऑलवेज़ अ वर्टिकल ग्रोथ, हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तभी आपको आई पर्सनली थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जेन ज़ीज़ आर मोर गुड इन रिस्क टेकिंग, क्योंकि फिर उनके पास इसको इस तरीके से देखते हैं उनका थोड़ा-सा फ़ायदा और नुकसान भी है। एवरी जेन ज़ी हैज़ अ मिलेनियल कज़न, एवरी जेन ज़ी हैज़ अ मिलेनियल भाई-बहन, तो उनको पता होता है कि अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो वो सँभाल लेंगे, नंबर 1। दैट व्हाट आई थिंक कि मिलेनियल्स के पास वो नहीं था बासनेट। तो बहुत कम ऐसे जेनज़ीज़ होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है कि वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ग्रोथ का मतलब या चीज़ों को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज करो, ठीक है? यू बीइंग एन एचआर, आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपके पास कोई प्रोफाइल आएगी जो हर 5 महीने, साल में या 6 महीने में जॉब चेंज कर रहा होगा, तो आप उसको सूटेबल नहीं समझोगे, ठीक है? फिर वो जेन ज़ी हो या ना हो, क्योंकि आपको एक सस्टेनेबिलिटी देखनी होती है। Because if being an HR, if you're investing your time, if you're investing your effort in some profile, you need to see that profile as much in your company. ठीक है? Yeah. साल, डेढ़ साल, 2 साल बाद, बिकॉज़ वो एक डिबेटेबल होता है कि आप साल, डेढ़ साल में अच्छी खासी चीज़ें देख ले तो। लेकिन अम, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनिशन ऑफ ग्रोथ जेन ज़ीज़ की अलग है और मिलेनियल्स की अलग है। डेफिनिशन ऑफ ग्रोथ जेन ज़ीज़ की इस तरीके से होती है कि दे वांटेड टू लर्न, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू स्विच। For millennials, they wanted to earn money. That's why they are switching. Okay, so this is very important. Okay, so now you're working in one of the very finest IT companies in Pakistan, specifically in Karachi. Okay, now you're leading the business part, like you are now as the human HR business partner of that company. It's it's very unique to see a Gen Z working an organization on that big of a uh, क्या कहते हैं करियर पाथवे। हाउ वाज़ योर ओवरऑल ग्रोथ? मतलब ठीक है, आपने फार्मास्यूटिकल के साथ-साथ कर लिया। व्हाट डिड यू हाउ डिड यू स्टार्टेड? ठीक है, आई एम प्रीटी मच श्योर जब आपने इनिशियली आप गए होंगे तो लोग आपसे पूछते होंगे कि यू हैव डन योर फार्मास्यूटिकल, व्हाई यू वांटेड टू uh, do human resource. ठीक है, you have done some course and diploma after your graduation. But how do you start it? Like, what do you think? What should be the right pathway when you want to do something different than your
ग्रेजुएशन, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, तो आप उसी फ़ील्ड में अप्लाई कर रहे होते हो, तो ये वाला सवाल कभी नहीं होता होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर एक मीडिया का स्टूडेंट है, वो किसी जगह पे अ, असिस्टेंट डायरेक्टर जाएगा, तो उससे ये नहीं पूछेगा कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर, वो बोलेगा मैंने पढ़ा हुआ है। आपके पहले इंटरव्यू में सवाल ज़रूर हुआ होगा कि भाई आपने पढ़ा फार्मा है, तो आपको एचआर में क्यों आना है? ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन समवन पिवट देयर career, and what should be the right pathway for that? Because I'm pretty much sure कि आपने ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सोचा कि भाई ठीक है मुझे एचआर बनना है। You learn on that, आपने पहले काम करा, समझा। बट what should be the right pathway? क्या ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ में पढ़ो उसी चीज़ में काम करो, या चेंज करने में, क्योंकि मुश्किलात तो आई होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इट्स वेरी बिल्कुल। सिंपल। नो, नो, दैट्स ट्रू। एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान में 2 चीज़ है। एक तो हमारा जो बंदा बैठा हुआ है ऊपर, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जेनज़ीज़ नहीं हैं। तो डेफ़िनिटली पाकिस्तान में देयर इज़न्ट एनी वेलकमिंग और अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट और लाइक कल्चर फॉर पीपल हू आर लाइक कमिंग फ्रॉम अ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड। दे डोंट वेलकम देम एज़ विद ओपन आर्म्स और लाइक ओपन position. So yeah, that is true. But at the same time, I won't even blame them. Only आपको भी अपना होमवर्क करना है। You also have to like have a good foundation. पूरा आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि एक बंदे ने आपका माइंड कंडीशन कर दिया तो आपने उसकी सुन ली, दूसरे बंदे ने आपका माइंड कंडीशन कर दिया तो आपने उसकी सुन ली। My journey was in a way कि before my first break, my first paycheck for an internship, my first internship in HR was unpaid. The second job I landed was of I think 6.5 6,500. The first paycheck I retrieved back in 2023, ending to 2023. So and to get even that internship, the first paid one, I had to go through 44 interviews. I clearly, vividly remember. So that was not just 44 interviews, that were 44 rejections. And not every HR is kind, not every CEO is kind, not every director is kind. They're like, I have seen people who like picked my resume up and see, Iman, this is useless to me. So thank you so much for your time. A maximum 3 to 4 minutes interview. I've been to those interviews. So yeah, it wasn't easy. And where I am today, almost in my entire life, I've given on like 68 to 70 interviews. I never missed an interview. This is one thing about me. Even if I'm on a job, not a good thing to say on on call, but I never missed an interview because what I feel is 5 साल के क्लासरूम में आप उतना नहीं सीखते about the person who is going to hire you, about the industry, about the mindset of the decision makers, जितना आप उस 15 मिनट की कन्वर्सेशन में सीख लेते हो। डेफ़िनिटली मैंने जो अपना होमवर्क किया हुआ था या अपना रोड मैप प्रिपेयर किया हुआ था फॉर द एचआर फॉर माय ट्रांजिशन, दैट हेल्प्ड। बट दोज़ 34-40 इंटरव्यूज़ हेल्प्ड मी मोर टू नो, टू आंसर कि मुझे कहाँ घुमाएगा बंदा कि यार मेरे पास राइट स्किल नहीं है या राइट एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। I started reading the person who was taking my interview rather than, preparing for the job description or something like that. So that really helped. And that is what I always, even when I enroll batches for my mentorship programs, मैं उनको भी हमेशा अपने सारे लाइक स्टूडेंट्स को बच्चों को यही कहती हूँ कि यार जो जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है उसके शूज लाइक उसका माइंड में सोचो वो उस पर क्या सोच रहा है। यू हैव टू रीड द पर्सन। सो या दैट वाज वन थिंग दैट रियली हेल्प मी थ्रू दिस जर्नी। रिजेक्शंस आपको मिलती हैं इफ यू आर स्टिव, इफ यू आर स्टेडफास्ट एंड इफ यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम इट, नो मैटर व्हाट पीपल से टू यू, लाइक आई स्टिल हियर। अभी तक मैं लोगों से मिलती हूँ तो ले लाइक कि व्हाई लाइक यू जस्ट फ्लडेड योर 5 months 5 years of education, why did you do that, you let it go? And I still like tell people, see, that was my education, that was my learning, that's gonna stay with me. Yeah, I have the paper, I have the degree, I have everything in my mind. I'm still capable of like prescribing drugs. I'm registered from Pharmacy Council Pakistan. It's not like it's gone. I'm still here. The education is always gonna stay with me. It's not always कि आप job करोगे तभी और education आपको pay off कर रही है. You're aware, awareness, knowledge, everything. It still is there, na. So it's gonna be with me for the rest of my life, whether or not I make money out of it. You cannot judge the success of an education by the fact that you're making money out of it or not. I'm making money out of my I'm doing that's it. That's okay. So definitely, and 90% of students of Pakistan, they are not
करियर काउंसल प्रॉपर्ली। बैचलर से पहले तो हमारे यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है काउंसलिंग का, तो डेफ़िनेटली उस वक़्त जो डिग्रीज़ हम सेलेक्ट करते हैं, वो या तो हम अपने पेरेंट्स के बेसिस पे करते हैं, उनकी चॉइस पे करते हैं, उनके प्रेशर में आके करते हैं, या हमारे बड़े या भाई-बहन के इस पे करते हैं। तो डेफ़िनेटली वो हमारी कॉलिंग नहीं होती है, वो हमारा शौक नहीं होता, वो हमारी स्किल नहीं होती। वो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन पता चल सकती है, आपको इन मिडल ऑफ योर एजुकेशन पता चल सकती है, सोसाइटीज़, क्लब्स और यूनिवर्सिटी की एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में पता चल सकती है कि यार दैट्स माय कॉलिंग, आई रियली हैव फन देयर, आई कैन मेक माय लाइफ आउट ऑफ इट। सो एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, दैट्स योर ओन लाइफ, टेक अ एयर फ्रॉम योर लाइफ, लर्न अबाउट दैट स्किल, वर्क ऑन दैट स्किल एंड देन गो गेट योर जॉब। द लाइक अपॉर्च्युनिटीज़ आर एंडलेस। ठीक हो गया। आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। यू हैव टू राइड योर ओन लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान के लिए कोई चीज़ चाहिए तो आपके लिए भी ठीक हो। आई हैव अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स टू डिस्कस फ्रॉम दैट। मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इन माइंड इज़ यू जस्ट मेंशन के you have given 40 plus interviews. ठीक है? I think this is one of the very few achievements that people usually don't take it क्योंकि um, not everyone is here to hire and not every company is good for you to join. ठीक है? What do you think how to handle rejection? ठीक है? Um, बिकॉज़ ये जो सवाल है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे पर्सपेक्टिव जानना है एक जेन ज़ी का, ठीक है? अ, ठीक है, मिलेनियल्स का परसेप्शन बड़ा अलग है, तो मैं शायद मिलेनियल से सवाल ना पूछूँ। बट हाउ डू यू अम, सी रिजेक्शन? किस तरीके से आपने उस पे काम करा, ठीक है? हाउ टू डील विद इट? बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि आपको यूनिवर्सिटी में, फिर आप बीबीए क्यों ना पढ़ रहे हो, आप बिज़नेस यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, वहाँ भी आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि रिजेक्शन कैसे करें, रिजेक्शन को डील कैसे करना। सो Yes, व्हाट शुड बी द राइट वे टू डील अ रिजेक्शन? okay, so I'm gonna answer that in both perspective, but from a Gen Z and also as an HR. Always request a feedback. 2 फीडबैक होते हैं। एक फीडबैक होता है जो इंटरव्यू के बाद मुझे पता होता है मैंने कौन-सा कहाँ भंड मारा है। मैंने क्या चीज़ बोली जो मुझे उस वक़्त नहीं बोलनी चाहिए थी, 2 मिनट सोच के बोलनी चाहिए थी। इंसान अपना एहतसाब इंसान सबसे अच्छा कर सकता है, जितना कोई दूसरा नहीं कर सकता। So, firstly, always request a feedback, and secondly, at the perspective of an HR, also I'll say always request a feedback. You got your rejection email. That's it. That's not the end of the world. Respond to that email. Write a very nice email on from ChatGPT. We all are using ChatGPT for emails. Nobody has enough time. I think it's been 11 months. I have not written a single email on my own. It's prompt सीख लो यार आप ChatGPT से email बना लो. That's it. It's fine. Nobody has enough time to write emails on their own. Write a very good email request or feedback कि okay what made you think like I was not aligned for your job role and work on that. So that's it's okay. Even like अगर आप email नहीं कर सकते या you don't have the email, reach out to that person over LinkedIn. LinkedIn is like a magic wand for you if you're using it correctly. It can make your opportunities endless. Reach out to that HR over LinkedIn. आप उसके आप आपने उसको एक बार रीच आउट कर लिया, आप उसके डेटाबेस में आ गए। लिंक्डइन मैसेजेस जो हमारे पास होते हैं एज़ एन एचआर आल्सो, दैट्स योर डेटाबेस। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ योर ओन ऑन एक्सेल शीट्स और गूगल शीट्स, दैट्स इट। Someday you're gonna stay in the back of the mind of that person. Someday it's gonna reach out to you on your own, and that has happened to me. Like multiple organizations I was rejected from, I reached out to HR, I spoke to them, we had a very good conversation, meaningful conversation. Later in life, after 2 years, 3 years, they reached out to me, okay, hey, we are hiring for that role again or a senior role. Would you like to like interview for it or would you like to consider the opportunity? It happens. So, other than that, how to deal with failure is work on yourself. Never take a failure against your own self. It is, every failure is a room for improvement. एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आपका कभी खत्म नहीं हो सकता, बट हाँ लाइक इतनी बड़ी चीज में आपको इस पे काम तो करना है, इसको ठीक, ये मेस है इसको ठीक तो करना है। जब यू गेट अ रिजेक्शन ना, यू गेट टू नो कि ओके मुझे कहाँ काम करना है, सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। नाउ you know where you have to work, so that's a good direction, use it as a direction,
नॉट कि मेस तो हमेशा अभी भी लाइक इवन राइट नाउ आई फील लाइक माय रिज्यूमे इज़ अ मेस. I'll take that resume for an interview and they reject me. Okay, so now I know कि okay, I was rejected from this interview based on this JD interviewed by this person. Now I know कि in this mess, this is the area that I need to work on. So it's a good thing. Look at the brighter side. Fair enough. The next thing that I wanted to discuss is now you're working as a HR business partner. Okay. Um, I'm pretty much sure your growth path या career path में भी there is time जहाँ पे आप I'm pretty much sure हर मिलेनियल को तो हायर हर जेनजी को तो हायर नहीं कर रहे होगे. You are also hiring millennials. Yep. Um, how to hire someone जो कि आपसे बहुत बड़े उम्र में है, because then there is a debate कि हो सकता है आप जो चीज़ सोच रहे हो वो गलत है, वो जो सोच रहे हैं वो गलत है. तो do you think that matters or that doesn't matter? Like आप हायर कर रहे होते हो तो do you think यार हाँ भैया वो मुझसे 10 साल बड़े तो I'll expect these questions, these pointers from them because they have different perspective. ठीक है. Is this something that you see in your career pathway? And if you did, how do you deal with it? Yeah, even I'd say most of the times when I've interviewed people, they were older than me. I'm the youngest one even in my department. Like although I really love about my department right now is like we have a team of I think 11 HR people, all including all compensation and benefit and everything. But almost 9 of us are females. It's a very women dominated department of HR, so I really like about that. I consider that an achievement. But yeah, coming back to the point, I have interviewed a lot of people that were older than me, many ages, many folds older than me. Like even people of my father's age, I have interviewed them, and I always, one thing you can never deny is experience. They have been in corporate for more than my मतलब वो कहते हैं ना तुम्हारी उम्र ज़्यादा मेरा तजुर्बा है बेटा तो that is true. Multiple things, not always about skills, about technical or इस तरह के aspect, maybe not software aspect, but about people, about handling conflicts, about management, about communication. वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाते हैं, बता जाते हैं. I used to think वो गलत बात है, but even I learned and I grew. इनिशियली के आए ओल्ड हैं, इनको समझाना मुश्किल होगा, रिजिड से हैं, रिजिड होते हैं नो डाउट. पीपल व्हेन आई हैव इंटरव्यूड फॉर पोजीशंस ऑफ मैनेजमेंट और डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव, सो उनका एज ब्रैकेट ही ऑलमोस्ट 35 टू 45 होता है. इस एज ब्रैकेट के अंदर वी आर फायरिंग असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हम कहते हैं. तो क्या रिजिड होंगे, यू हैव टू एक्ट वेरी सटल एंड यू हैव टू एक्ट अ बिट ओल्डर देन योर एज फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर दिस मीटिंग दैट यू आर गोना हैव. And speak less and don't let them know that you are a Gen Z. Make them feel कि नहीं यार हम भी like almost millennial या near to millennial ही है. But when after meeting multiple of people, I ये तजुर्बे का आप नहीं challenge कर सकते. They know things definitely. They have been in the corporate and they are very skilled and they know people. They know their way around people. क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि हम जेन ज़ी हैं तो हमें उनके साथ डील करना है, हमें मिलेनियल्स के साथ, बूमर्स के साथ डील करना है. वो भी जेन ज़ीज़ और मिलेनियल्स के साथ डील करते हुए आए हैं, तो इवन दे आर वेरी मच शार्प इन दैट एस्पेक्ट. उनको भी हर किस्म के बंदे को डील करना आता होता है. So it's more, at the end of the day, what I think is that there is no harm to learn from people. Okay? Because Def to be very honest, the main reason of asking this is to understand कि is it something that Gen Zs are taking it in a wrong way? क्योंकि you never know. Maybe next time when you're working, क्योंकि अगर मैं भी देखता हूँ 5 साल बाद ऐसा हो सकता है कि you're working for a company जिस कंपनी का CTO या CEO जो है वो Gen Z हो. एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट वो अपने हिसाब से ग्रो करना चाहता है और वो उसको हुँ. अपने हिसाब से देखता है. तो आई एम प्रीटी मच श्योर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप जिस कंपनी में भी काम कर रही है, जब आपको हायर किया गया होगा तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी. बिकॉज येस एज इज़ अ नंबर बट एक्सपीरियंस कम विद अ प्राइस. ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. या दैट्स ट्रू. That goes to, yes, you wanted to shift to HR, mashallah, you are doing good. You were in pharma, ठीक है? So why don't you go for a company
फार्मा रिलेटेड, उनको भी तो एचआर चाहिए होता है। योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ मोर टुवर्ड्स आईटी। Uh, Yeah. it's not only about the main reason of discussing is to get an idea why IT firms, why this tech related thing. Yes, it's booming, it's going good, but pharma is like वो तो मतलब पुराना वो है ना कि फार्मा में आपकी नौकरी हो जाए, आपकी ज़िंदगी सफल है, आपको कुछ नहीं करना। ना वो मतलब पैनाडोल को क्या ही हो जाएगा? पैनाडोल एआई नाम ही चेंज कर देगा, पैकेजिंग चेंज कर देगा। पैनाडोल तो पहले ही पैनाडोल थी, अब भी पैनाडोल है, 10 साल बाद भी रहेगी। सो व्हाई डोंट यू जॉइन एचआर फर्म्स और सॉरी व्हाई डोंट यू जॉइन कंपनीज़ रिलेटेड टू फार्मा जहाँ पे आपकी पढ़ाई, आपका टैलेंट, आपकी सारी चीज़ें कंबाइन होके एक चीज़ बनती। Right. थिंक डू यू थिंक दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लोर अबाउट या क्या आपने सोच के सोचा कि नहीं यार ठीक है? क्योंकि अभी अभी अगर मैं बोलूँगा ठीक है यार नाउ यू आर वर्किंग फॉर डिफरेंट आईटी कंपनीज़ तो अब तो पाथवे हो चुका है। तो अब तो शायद इम्पोर्टेंट नहीं हो क्योंकि अब सही है एचआर का काम सेम होता है लेकिन वो एथिक्स बदल जाते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर जब आप आईटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपके हायरिंग एथिक्स अलग होते हैं। जब आप किसी फार्मा कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो आपके हायरिंग एथिक्स अलग होंगे, ठीक है? बट स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा कि यार ऐसा कर लेते हैं या यू जस्ट गो विद द फ्लो और अब आहिस्ता-आहिस्ता आईटी पे कर ही लिया तो फिर आईटी रखते हैं। व्हाट वाज़ योर थॉट इन दैट? No, both the things that you said are right अपनी अपनी जगह पे। पहली चीज़ कि I did get a break back in my career around I think before I made this recent switch from a pharma. It was a very celebrated pharma of Pakistan. Head office and warehouse अलग अलग था, so you didn't have to travel. Head office was fairly near to my house. But what I identified in the market and what I identified in the people after like several interviews I gave, several people I met was कि the thing that I mentioned कि पाकिस्तान के लोगों में डिसीजन मेकर्स में accommodating और वेलकमिंग नेचर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर है, तो वो आईटी सेक्टर में है। हुँ। वेरी डायनामिक, वेरी ओपन माइंडेड, रेवोल्यूशनाइज़ है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, नई चीज़ों को, नए आइडियाज़ को, नए लोगों को कैटर करते हैं। तो डेफ़िनिटली मेरे लिए अपना ब्रेक लेना या अपना पाथ बनाना, इट वाज़ एन ईज़ी एस्केप कह सकते हो आप कि लाइक इट वाज़ अ ईज़ी वे आउट कि यार आई अगर पूरे लाइक दिस इज़ द जॉब मार्केट दैट आई हैव इसमें एफएमसीजीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, इसके अंदर आईटी है। आईटी वाज़ द ईज़ीएस्ट, मोस्ट एक्सेप्टिंग, मोस्ट अकोमोडेटिंग वन टू एट लीस्ट इनिशिएट द करियर। भले कंटिन्यू आप ना करो, लेवरेज ना करो, बाद में आप एफएमसीजी में आ जाओ। सब इवेंचुअली एफएमसीजी में ही आना चाहते हैं और आ भी जाते हैं। बट या इट्स दैट्स अ दैट्स अ वो तो वो तो रोड मैप ही ऐसे बनेगा ना वो अगर मैं इसलिए क्योंकि जान रहा हूँ क्योंकि ठीक है आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो और स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ-साथ चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है? अम, येस एमएनसीज़ आर द सेकंड लास्ट गोल क्योंकि उसके बाद जो गोल होता है वो आप अपनी कंपनी खुद बनाते हो और एमएनसी का जो सबसे बड़ा गोल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कि अब बहुत कम हो चुका है पाकिस्तान में वो यही होता है ईज ऑफ एक्सेस फैसिलिटीज एक्स वाई थिंग क्योंकि पैसे तो आपको आईटी में ज़्यादा मिलते हैं एमएनसी फॉलोज रूल्स ठीक है आईटी में आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं एंड दैट्स नॉट अ डिबेटेबल टॉपिक टू बी राइट ना अगर 2025 की बात की जाए यस एवरी I think every state has like 3, 4 IT फर्म्स पता नहीं इनको आईटी फर्म्स क्यों कहा जाता है जबकि वो अपवर्क पे काम कर रहे होते हैं। इट्स मोर लाइकली ब्रोकरेज फर्म उनको ये कहना चाहिए बट दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स बट येस इसमें कोई बुराई नहीं है और पीपल एंड अप वर्किंग फॉर एफएमसीजीज़ इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इवेंचुअली हर बंदे को अपनी ग्रोथ चाहिए। दैट्स ट्रू। Right now, you are more likely 24, 25. Your thought process is different. When you become 27, 28, you will be getting married. You got married, you have children, and your thought process change. Then your body works ethics change. I'm pretty much sure. मैं ये नहीं कहता कि उसमें आपका एंथुसियाज़्म खत्म हो जाता है या अगर आप में उसमें जो मोहब्बत होती है अपने करियर पाथवे के लिए वो खत्म हो जाती है। बट आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते। जब आप 20 से 25 साल के होते हैं, आप 10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। एंड देन आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलता है ठीक है यार अब मुझे सोना ज़रूरी है, अब मुझे अपने आप की भी इम्पोर्टेंस देनी है एंड देन यू नीड टू आल्सो रियलाइज़ कि अब मुझे सेल्फ एफिशिएंट बनना है कि
अब मुझे ये छोटे मसलों को ना देखना पड़े कि यार कब मैं 50,000 से 60,000 पे जाऊँगा, कब मैं 60,000 से 70,000 पे जाऊँगा। देन देयर आर इक्विटी, देयर आर लाइक शेयर होल्डिंग्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। वो तो ग्रोथ में बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक आईटी वर्क्स फॉर यू एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Moving forward is, so you have given multiple interviews and you have done a lot of jobs as well. हर जॉब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि शायद लोग नेग्लेक्ट करते हैं। एज़ अ मिलेनियल्स मुझे लगता है हम शायद फिर भी देखते होंगे। इट्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि स्विचिंग अ जॉब इज़ बेसिकली अ रिस्क मैनेजमेंट व्हाट आई पर्सनली सी कि एक लेक है जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स हैं और एक पतला-सा ब्रिज है, आपको उस पे से क्रॉस करके जाना है। बिकॉज़ यू डोंट नो कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इट्स अ फैंसी थिंग, जब तक आपको उस कंपनी में नहीं होता, आपको हर चीज़ कंपनी की अच्छी लगती है। दैट्स ट्रू। जिस कंपनी में आप हो तो उस कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ होता है जब आप उस कंपनी में नहीं आते। ठीक है? बट व्हेन यू स्पेंड सम टाइम देन यू नो द रियलिटी। ठीक है? बट या व्हेन यू आर गोइंग टू अनदर कंपनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है मुझे वो 20,000 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है? आई नो मिलेनियल पॉइंट क्या है। मैं बहुत सारे मिलेनियल से चीज़ें पूछी हैं। मैं बीइंग अ मिलेनियल तो मुझे पता है। बट डू यू थिंक रिस्क मैनेजमेंट आप देखते हो, ठीक है, कि ईदर इट्स मनी, ईदर इट्स ग्रोथ, ईदर इट्स फैसिलिटीज़, व्हाट शुड बी द चेकलिस्ट? अगर मैं कहूँ कि ईमान एक चेकलिस्ट बनाओ कि जॉब पे स्विच करने से पहले आप देखते भी हो या नहीं देखते? अगर देखते हो तो उस चेकलिस्ट में क्या चीज़ें होती हैं जो मैं ठीक है ये चीज़ें अगर चेकलिस्ट में क्लियर होती होंगी ना तो मैं जॉब स्विच कर लूँगा। Yeah, it there is always a checklist and there should be a checklist. हाँ, अब चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वैरी करती है। मेरी चेकलिस्ट इनिशियल डेज़ ऑफ माय करियर डिफरेंट थी। अब इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी, वेरी डिफरेंट। अब अगर यहाँ से मैं स्विच करती हूँ इन नेक्स्ट 4-5 इयर्स या 2-3 इयर्स, तो डेफिनिटली एक डिफरेंट चीज़ मैं देखूँगी। पहले मैं देखती थी कि सैलरी, वो हाउ इज़ द कॉम्पेंसेशन पैकेज, इनफॉर्मल वे में अगर मैं आपको बताऊँ 2-3 चीज़ें। सेकंडली कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का एवरेज हेडकाउंट कितना है। पहले मैं बस ये 3 चीज़ें देखती थी। नाउ इफ इन लेटर इन लाइफ आई मेक अ स्विच, तो डेफिनिटली इफ आई हैव अ फैमिली ऑफ माय ओन, आई एम मैरिड, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव किड्स, so I'd see flexible hours, I'd see what are the work from home opportunities, how what hybrid of a model I could follow. These, आपकी requirements change हो जाती हैं. But a general checklist, in terms of not your requirements, in terms of organization's perspective, पहली चीज़ जो मैं देखती हूँ, Glassdoor and LinkedIn are your best friends. Go to Glassdoor, go to the reviews. I won't say कि पिछले 25 साल के रिव्यूज़ आप देखें, कंपनीज़ चेंज करती हैं, स्टेक होल्डर चेंजेस आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, सीईओज़, पब्लिक लिमिटेड है अगर ऑर्गेनाइज़ेशन, तो सीईओज़ भी चेंज हो जाते हैं, सीईओ फाउंडर सेम नहीं होता, तो चेंज हो जाते हैं। कंपनी का पूरा एक डेकोरम, एक पूरा कंपनी रेवोल्यूशनाइज़ हो जाती है। Multiple FMCGs हैं, if I'd say, there's Fuzzy Foundation, there's Engro. Last 25 to 40 years में अगर हम stats इनके पढ़ें तो employee engagement पे, employee retention पे, they have done tremendous work, and their turnover rate is one of like the key factors जिनसे हमें सीखना चाहिए। They're the lessons, they are these case studies of our MBA or business के how to like increase retention. सो पहली चीज़, ग्लासडोर एंड लिंक्डइन, गो टू रिव्यूज़ लास्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स के रिव्यूज़ आप देख लें। सेकंड थिंग इज़ गो टू लिंक्डइन, गो टू द एम्प्लॉयी सेक्शन, सी व्हिच डिपार्टमेंट यू आर जॉइनिंग इन, देयर इज़ ऑलवेज़ सेक्शन ऑफ लिंक्डइन जहाँ पे ना व्हाट दे डू, देयर इज़ ऑलवेज़ मेंशन्ड देयर। गो इफ लाइक आई एम जॉइनिंग इन द एचआर, आई गो टू एचआर, देन आई सी हू एम आई रिप्लेसिंग, who is like added the resignation, kiska resignation, who has added like we all added over LinkedIn ke hey I've joined this new organization, so see what resignation was made in last 1 month or like 2-3 weeks, and then observe like in that department what is the average years of service. The company I joined, like I joined this organization almost 4-5 months back. So what I did was I went through the LinkedIn page. I saw my department. There were 13 people working there. Now there are 11, including me. The average year of service was 3 to 5 years. So the long see if a person has stayed in the organization for 5 years, the organization is probably doing something right. They were able to retain the employee for 5 years, 5 to 10 years, or 5 to 7 years. Definitely, But the retention rate is for millennials, no? You are being a Gen Z, how can you do that? This is a debatable thing. Yes, you were saying at the right point कि आपको ये चीज़ें बहुत 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 सही पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बस आँखें बंद करके चले हैं, क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप वो चीज़ें देख सकती हैं।
बट दैट कम्स टू अनदर पॉइंट, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव में देखूँ, यू बीइंग एन जेन ज़ी, और अगर कंपनी में 5 साल से काम लोग काम कर रहे हैं, तो वो मिलेनियल्स हैं, उनका तो थॉट प्रोसेस ही वैसे, ठीक है? Yeah, exactly. बट Like हाउ डू यू लाइक this. हाउ डू यू लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है, ये चेकलिस्ट आपने देखी, बट अगर मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में बात करूँ, डू यू थिंक कि आप किसी और के एक्सपीरियंस पे अपना जजमेंटल लोगे? ठीक है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर कोई बंदा रिज़ाइन कर रहा है किसी जगह से एंड आई एम फुलफिलिंग दैट पोज़ीशन, ठीक है? तो ईदर वेज़ हो सकता है कंपनी सही ना हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कि वो कहीं और जा रहा हो। क्योंकि इट्स नॉट दैट डिसाइसिव। ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पे अप्लाई करें उसने फ़ौरन ही हर चीज़ अपडेट कर दी हो या Yeah, वो हर that's चीज़ बता रहा हो, ठीक है? लेकिन आपको कहीं न कहीं रिस्क लेना होता है। वो रिस्क ये होता है कि वो रिस्क टेकिंग वर्दी है या नहीं। मेरा मेन मकसद यही था पूछने का कि ऐसा ना करें कि यार आपको ऐसा लगे, बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं, 50,000 में 60,000 की ऑफ़र आती चले जाते हैं। Hmm. इज़ दैट वो जो कॉम्पेंसेशन आपको मिल रही है, क्या वो वर्दी है उस पोज़ीशन के? Because being as a being as a being a girl and in Pakistan, you need to also understand कि मैं 10,000 रुपए के लिए जा रही हूँ, और अगर मेरा ट्रैवल डिस्टेंस और कोई Yeah. चीज़ नहीं आती, ग्रोथ-व्रोथ कुछ भी नहीं है, सब सेम है। एक जगह मैं जा रही हूँ गली के दूसरी गली में, तो ये या एक इलाके से दूसरे इलाके में जो कि बहुत करीब है, 5-10 मिनट का रास्ता है। वो मुझे 10,000 रुपए ज़्यादा दे के कराची के एक कोने से दूसरे कोने बुला रहे हैं, जिसमें जब मैं एंड में हिसाब लगाऊँगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है? हाँ, ये दोनों तरीके से देखा जाता है कि येस, आई एम ऑन द हायरिंग साइड, वी आर हायरिंग फॉर people in the team, and yes, I have seen people, uh, and I'm not saying being a Gen Z or being a millennial, लोग कहते हैं कि यार ठीक है आपका ऑफिस दूर है, and then I need to then I need to reevaluate कि ये ट्रम्प टू ट्रम्प डिपेंड करता है कि अगर किसी ने अपने करियर पाथवे में स्टार्ट करा है तो उसके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको उस चीज़ में सीखना है, Hmm. ठीक है? लेकिन अगर कोई बंदे को 5-6 साल हो चुके हैं, तो उसके शायद डिसीजन सही हो। Yeah, ज exactly. ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप स्विच करते होगे, ठीक है? आपने सारी चीज़ें देख ली, लेकिन आप ये ज़रूर इवैल्यूएट करते होगे कि जो भी मेरी रेज़ हो रही है, ठीक है? बीइंग इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, आपको एक तो आप एग्ज़ैक्टली कैलकुलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जब कंपनी से निकलोगे दूसरी कंपनी जाओगे, उसके बीच में टैक्सेशन बढ़ जाएगी, ठीक है? तो आपको जितना मिल रहा होता है कभी-कभार तो आपको उससे भी कम में मिलने लग जाता है, एंड देन यू Yeah, रिवैल्यूएट कि ओए क्या that मसला है यार ये, that's true. ठीक है? क्योंकि यार ग्रॉस अलग है, नेट अलग है, इस पे ही बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो आज भी मैं ऐसे मिलेनियल्स को जानता हूँ, जिनको नहीं पता होता कि व्हाट शुड बी देयर नेट सैलरी, ठीक है? वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स नाउअडेज़, आई तो पर्सनली बिलीव कि आपको डायरेक्टली नेट सैलरी पर बात करनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान में, ठीक है? Yeah. बिकॉज़ दिस इज़ ऑन द कंपनी, सही है? कंपनी आपको किसी भी सैलरी पैकेज पे हायर कर रही है, लेकिन अगर कल को आपकी टैक्सेशन चेंज होती है या टैक्स ब्रैकेट चेंज होता है, देन योर ओवरऑल सैलरी बिकम्स अ वेरी डिफरेंट डिज़ास्टर। Yeah. कभी-कभार That's बंदे को जो ने very हाँ, कभी-कभार बंदे को जो ग्रॉस सैलरी मिल रही होती है, वो जब बढ़ता है टैक्स स्लैब, तो वो उसकी नेट सैलरी उससे भी कम हो जाती है, एंड दैट हाउ इट गोज़। बट येस, yeah. यू वर राइट कि यार ये चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी चाहिए और देखनी चाहिए। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट इज़ कि what is the definition? Because now I see that you are a very decent level of your career, ठीक है? You are working for almost like I think 4-5 साल से, ठीक है? Yeah. And now position wise you are on a senior level, ठीक है? What should be the ultimate goal अगर मैं ईमान से पूछूं, सही है? क्योंकि हर बंदे ने कभी ना कभी तो अपना कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है? या ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काम ही कर रहे होते हैं और उनको नौकरी करनी होती है, बिकॉज़ नॉट एवरीवन इज़ हियर टू स्टार्ट देयर बिज़नेस, ठीक है? बट व्हाट्स योर अल्टीमेट डेफिनिशन ऑफ ग्रोथ कि यार व्हेन आई रीच टू दैट पॉइंट, तब मुझे लगेगा कि यार आई डन समथिंग इन माय लाइफ। आई एम प्रीटी श्योर अभी जहाँ पर आप हैं वो और हो भी सकता है, बट व्हाट योर थॉट प्रोसेस? जस्ट एन आइडिया। Uh, if I add a bit of humor to it, back in my university days, I read a post somewhere that work hard until your bank balance looks like a telephone number. योर डैश देन मैं बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सही है। Maybe that was just a joke. हाँ, मैं बिल्कुल ये मैं इसको गलत नहीं कहता कि जैसे फॉर Yeah, yeah. एग्ज़ाम्पल
बीइंग अ डिमांडिंग पर्सन, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि भाई ज़रूरी है, अगर मैं 5 साल 6 साल से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इतना डिमांड कर सकता हूँ, ठीक है। और बीइंग एन एचआर आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि मार्केट सिचुएशन क्या है, सही है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी जॉब ओपनिंग्स देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार वाक़ई में मुझे इतनी सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है? पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करें तो उससे पहले तो आपको ये इवैल्यूएट करना होता है कि इंडस्ट्री भी इतना दे रही है, नहीं दे रही। ऐसा हो कि आप कहीं जाएँ और आप किसी को कहें कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है? वो हुँ। कहे कि भाई कोई नहीं दे रहा, तो वो कह रहा है नहीं मुझे तो चाहिए। तो वो तो बड़े अ, लॉजिक या, ऐसी बात है, लेकिन ट्रू दैट। अल्टीमेट गोल क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप ये कहो कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं इतने पैसे कमाऊँ, ठीक है? क्योंकि येस, यू हैव यू आर यू आर वर्किंग फॉर समवन, ठीक है? और जहाँ पे आप ऑलमोस्ट अपना 75% टाइम लगाते हैं 1 दिन का, ठीक है? बिल्कुल। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि आई एम नॉट श्योर कि अभी आप उस स्टेज पर आए हो, लेकिन एक स्टेज आता है जब आप पैसे कमा रहे हो तो फिर आप सोचते हो इतने पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन खर्च करने का ही टाइम नहीं है, तो मैं करूँगा क्या? या, ठीक है? दैट्स क्योंकि आप एक वक़्त में अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम अपने ऑफ़िस को दे, प्रॉपर। ठीक है? और वो शादी से पहले बड़ा मज़ा होता है, ठीक है? बड़ा अच्छा लग रहा होता है, एन्जॉयमेंट चल रही होती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज भी होता रहेगा, या, ठीक है? अ, um, तो व्हाट शुड बी योर अल्टीमेट गोल? कि मैं अगर ईमान से पूछूँ, ईमान कहे यार दिस इज़ माय अल्टीमेट गोल। yeah, I could tell mine. अगर ईमान का अल्टीमेट गोल you'll ask, there was this one, अब थोड़ा डिफरेंट भी हो गया है. There was this one, like, I saw my like father work for 25-27 years in the same organization. Back when was graduating, उस वक़्त मेरा अल्टीमेट गोल था कि यार आई वांट टू रिटायर माय फादर एंड आई वांट टू बी इतना सफिशिएंट कि आई कैन रन माय एंटायर हाउसहोल्ड ऑन माय ओन, एंड माय फादर डज़ नॉट हैव टू वरी that okay, I'm retiring now, so who's gonna look after the household or expenses? So yeah, that was my ultimate goal. Ki like I can retire my father, and he doesn't have to work. One, because like we're three sisters, and hota hai ek we cannot deny it. No matter how progressive we get, there is always gonna be this one thing about like, you're a father of three daughters, and then you're a father of sons, or like you have sons of your own. So there's always gonna be that mentality in Pakistan, and it's fine. It's there. Let it be. We cannot make the nation progressive in overnight or in an instant. So it's okay. So that was one of my ultimate goal. At the moment, right now, if you may ask me what is my ultimate goal, is like, I want iMantra, my thing, my startup, to be self-sufficient, to be sustained, and to now finally being at this position, I want to return to the world or to the society, the CSR, what I have in me, and like my potential. I want to be a good person and not always make money out of everything, and just return goodness and like goodwill back to the society. That is my ultimate goal. Fair enough. You have mentioned you started a startup called iMantra, ठीक है? So what do you think, क्योंकि जेन ज़ीज़, पर हम मिलेनियल्स भी इसमें पीछे नहीं थे। मिलेनियल्स ने भी मेरे ख़्याल से जितने स्टार्टअप्स के आइडियाज़ मिलेनियल्स सोचे उतने तो शायद जेन ज़ीज़ ने भी सोचे होंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है वो तो। बट एग्ज़ीक्यूशन में देखा जाए तो जेन ज़ीज़ ने एग्ज़ीक्यूट भी करा है माशाल्लाह से। नॉट ओनली यू, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल एंड Lot माशाल्लाह of दे आर people, डूइंग yeah. गुड, क्योंकि यस, इनिशियली सब चीज़ें छोटे से स्टार्ट होती हैं, बट व्हाई यू स्टार्ट आई मंत्रा, ठीक है? क्यों किसी बंदे को ज़रूरत पड़ती है कि यार वो कुछ चीज़ करे? मैं सिर्फ़ जानना चाहता हूँ। कि ये वही वाली बात है, मिलेनियल्स का पॉइंट और जेन ज़ीज़ का पॉइंट बड़ा अलग होगा, लेकिन स्टार्टअप करना ही क्यों है? पता है यार मैं काम कर रही हूँ, 28-30 तारीख को सैलरी मिल रही है, ज़िंदगी अच्छी से चल रही है। क्यों अपने ऊपर लिमिटेशंस लेना, ठीक है? येस, कुछ पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। लेकिन आपको ये समझना होता है कि स्टार्टअप में काम भी करना होता है। बिल्कुल। अंडर नहीं करना होता, लेकिन काम तो करना होता है। सो व्हाट डू यू थिंक एज़ पर यू कि यार क्यों करना है स्टार्टअप? क्यों जॉब ही नहीं कर सकते? इज़ देयर एनी स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि यार इंडस्ट्री के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं और मेरे पास ये लिमिटेशंस हो रही हैं? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप बेशक हेड ऑफ एचआर लग जाएँ किसी डिपार्टमेंट के, यू आर गोना बी अंडर समवन, ठीक है? यू आर रिस्पांसिबल टू गिव द ओवरऑल
अथॉरिटी को बताना पड़ेगा मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एक्स वाई ज़ेड। तो व्हाई स्टार्टअप लाइक जॉब करके क्यों नहीं चला रहे? चलाते रहे। No, I won't say I don't have that in me कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना. If like my manager is good, my bosses are good, I'm more than happy to work under them. I'm more than happy with my job. And I have been, Alhamdulillah, I have been very much blessed in this aspect. I have always gotten, not always, there were some bad as well, but most of the time I've gotten good managers. If I mention, like, I had Myra, she was the HR manager, wonderful manager, very, very great of a manager, great leader. Then I had Durish Abar. She was a very good manager of mine back in my very early career time. So worth mentioning names these both were. Currently, I have very good managers. I have great fellows. There's Melissa, there's Santila, there's AZ. It's our Salam Zuberi, we call him AZ. So the very good managers, everybody is. We have Fatma. We have multiple good colleagues, very nice people. But I mantra, see, it was not born for कि मुझे मेरा स्टार्टअप करना है. I cannot work under somebody and I want something, take money out of it. Even till now, till this day, I'm not making as much money out of iMantra jitna of the same niches and same industry brands might be making out of it. It was never meant for money. There was no Iman or no I mantra for me in my early career days, so I don't want it to happen to my fresh graduation, my kids. I consider them all my kids. I have, there have been like 4 batches, almost 42 students till now in 6 months that have mentored, graduated from I mantra. I consider them all my kids, and I didn't want them to suffer what I suffered. I had no dimension, no roadmap, no, I didn't have a resume. In till this day, in our curriculum course outline, आप किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स आउटलाइन कोड गाइडलाइन उठा के देख लो, आपको सीवी रिज्यूमे बनाना, कवर लेटर बनाना, इवन सीवी एंड रिज्यूमे का डिफरेंस भी आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा. यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन आफ्टर रिजेक्शन. सो जो 48 रिजेक्शंस मेरी थी, वो किसी के लिए 24 हो जाएँ, किसी के लिए 12 हो जाएँ, किसी के लिए 6 हो जाएँ, किसी के लिए 2 रह जाएँ. ये जर्नी मैं चाह रही जो मेरी चाह थी कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को ईज़ी करने के लिए उनका एक माइंड क्लियर करने के लिए, उनको रोड मैप बना के देने के लिए, कस्टमाइज़ सीवीज़, कस्टमाइज़ रिज्यूमेज़ आई मेड आई मेंटोर्ड देम, करियर काउंसलिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीवी रिज्यूमे रिव्यू. Every week I review more than 50 resumes for free. I'm making no money out of it. It's just coming from my time and my after office hours on my weekends, and I make them resumes. I provide them templates. There's a digital toolbox where you get a resume, a CV, a cover letter, an interview preparation guideline, and the complete roadmap to your next job from like classroom to corporate. There's this roadmap from classroom to corporate. I present them with free of cost. So it was never meant for money. Yeah, inshallah, in maybe next 5 years or in next 10 years, I might be making money out of it. Might be a multimillionaire organization, a very huge dream of mine, but it might be. But it was never meant for that. It was meant for a good cause. It was a CSR initiative, something to return back to the society, to my kids, my juniors. It was meant for that. Fair enough, fair enough. The last thing that I wanted to discuss is um being in Gen Z, working for HR, फार्मा से एचआर में आ गए, मतलब जितने ब्लास्ट ऑफ करने थे वो सारे कर लिए, ठीक है। मिलेनियल के टाइम पे पढ़ा कुछ, काम कुछ और करा, सक्सेसफुली डन, चेक, ठीक है। स्टार्ट करा एसोसिएट से, माशाल्लाह नाउ यू आर एचआर बीपी, चेक, ठीक है। स्टार्टेड योर ओन वेंचर, चेक, ठीक है। हर चीज़ सही रही, ठीक है। उसमें यू हैव 48 रिजेक्शंस, उसको पॉजिटिवली देखा, चेक, ठीक है। व्हाट शुड बी 3 चेक बॉक्सेस दैट यू वांटेड टू शेयर के लोगों को ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए, करने की ज़रूरत है, ताकि लॉन्गर टर्म सही रहे। सही, क्योंकि इनिशियली आपको शायद किसी भी बंदे की एडवाइस सही ना लगे, क्योंकि आप रेलेवेंसी नहीं होती ना। मैं किसी को कहूँगा कि यार ये गलत हो रहा है, आप ऐसा कर लो, वो कहेगा कि आप 30 साल के हैं, मैं भी 20 साल की हूँ। तो जो 25 साल वाली है उनसे पूछ लेते हैं कि व्हाट शुड बी द 3 केसेस, यार आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को इन 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। हो सकता है फ़ौरन से नहीं, लेकिन लॉन्गर टर्म में उनको फ़ायदा होगा। दैट्स द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस।
That's a very, very good question, and that's such a good summary of everything that I do at iMantra. One thing being कि कभी भी fear से या इस सोच से कि यार अब तो ये हो गया, अब कैसे होगा? Don't be afraid to take a chance. Take your chance. Be fully prepared for it. If you have dedication, if you have passion for it, go for it. Take a risk. It's fine. You're gonna fail. You're gonna fall. इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी इस चीज़ से क्या है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल एक जगह या 4 साल एक जगह, 2 साल एक जगह इन्वेस्ट कर दिए, अब क्या होगा? अब आई कांट टेक अ यू टर्न, यू कैन ऑलवेज़ टेक अ यू टर्न, इट्स योर लाइफ ना। आप अपनी ज़िंदगी से अपने लिए 1 साल नहीं माँग सकते क्या? आप माँग सकते हो, आपकी ज़िंदगी है, आपको किसी और से क्यों माँगना है वो साल? टेक अ ईयर ऑफ योर लाइफ, गो बैक, दोबारा से स्टार्ट करो, इट्स फाइन। So take your risk. If you think you can make a career out of it, you can make a life out of it, make money out of it, go for it. It's okay if it's not related to your degree. सेकेंडली कभी भी रिसोर्सेस के लिमिटेड होने या ना अवेलेबल होने की वजह से अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो उसको स्किप नहीं करो। आई आई हैड नो रिसोर्स, आई स्टिल डोंट हैव अ सिंगल क्लासरूम ऑफ माइंड, बट आई मंत्रा इज सस्टेनिंग। सो एनी स्टार्ट, इफ यू हैव अ स्टार्टअप आइडिया इन योर माइंड, गो फॉर इट, दैट्स ओके। भले स्टार्ट में आपको सारे काम खुद से करना हो, आप खुद से चैट रिप्लाईज कर रहे हो, आप खुद से ऑर्डर बुकिंग कर रहे हो, फिर से ई कॉमर्स थिंग, आप इंस्टा से स्टार्ट कर रहे हो, वो इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी मिलियनेयर थिंग वन डे, गो फॉर इट। थर्ड थिंग इज़ कि ये बहुत सारे लोगों से मैं ज़िंदगी में मिली हूँ जिनका यही पर्सपेक्टिव था कि यार नहीं, हम जब भी करेंगे हम अपना काम करेंगे, हम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, वी आर नॉट गोना डू जॉब। दिस इज़ रॉन्ग, यू नो। यू हैव टू बी ट्रेन्ड, मतलब you have to go inside the corporate sector to know how it's running, how it's functioning. एक दफ़ा आई थिंक सबको ज़िंदगी में एक दफ़ा एम्प्लॉयी किसी के नीचे काम करना चाहिए ताकि यू डिज़र्व टू वर्क किसी के ऊपर। अगर आपने कभी किसी के नीचे काम ही नहीं किया ना, तो आई फ़ील कि आप डिज़र्व ही नहीं करते कि आप किसी के ऊपर काम करो। यू डोंट हैव दैट ह्यूमिलिटी इन यू, यू डोंट हैव दैट काइंडनेस, यू डोंट हैव दैट कैरेक्टर टू, मतलब कभी-कभी कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो ऑलवेज़ लाइक इट्स ओके, आप 1 साल के लिए करो, 6 महीने के लिए करो, इंटर्नशिप कर लो यार, लेकिन ऑलवेज़ वर्क अंडर समबडी। आई थिंक इट इट वो जितना आपका कैरेक्टर डेवलप करता है, जितना आपका माइंड पॉलिश करता है, वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती। कभी-कभी धक्के खाना ज़रूरी होता है। Fair enough. I think we have discussed a lot of good pointers, Aman. And I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things. We have discussed कि यार किस तरीके से अपने bad decision को अपने good decision बनाना चाहिए. We have also discussed कि यार pivoting is the right thing. So ये ज़रूरी नहीं है आपने जो चीज़ पढ़ी आप उसी चीज़ में करें. And माशाल्लाह से you are doing everything in the right path. I'm pretty much sure you will be excelling in your career path much better in the coming ways. So thank you so much, Iman. Thank you so much for your time. I'm pretty much sure if anyone wants to reach out to you, they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, write a proper message. Hi, hello का message करेंगे तो don't expect a good answer. Write a proper message. I'm pretty much sure Iman will be always there to help you guys. So thank you so much, Iman. It's my pleasure to have you on the session.